आज के मुख्य समाचार। हेम महोत्सव को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता। जोडो नेशनल ट्रायल में चौहार घाटी की 2 बेटियों का चयन। किन्नौर के 3 युवकों की कार दुर्घटना में मौत। शिमला में पार्किंग की समस्या। 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 4 मार्च से शुरू। मुख्यमंत्री पहुंचे हेपा के 91वें स्थापना दिवस पर। अब समाचार विस्तार से। शिमला सचिवालय में दिल्ली में होने वाले हेम महोत्सव को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता की गई। हिमाचल को पूरे भारत में नई पहचान देने की नई शुरुआत की जा रही है। एक तारीख से 15 तारीख दिल्ली हाट which is in INA market में we'll be having our second Him Mahotsav. Last year was the first time we did it, and last year the Honorable Chief Minister had inaugurated it. This time on second, the inauguration will be done by our Honorable Revenue Minister, and the closing will be done by our Industries Minister, Mr. Harshvardhan. Like Himachal, all of you know that Himachal has some of the best arts and crafts and culture and music and dance and also amazing cuisine. However, somehow these soft power or soft components we have not been able to somehow we have not been able to propagate it. Last year was a brilliant success. More than 1 लाख के ऊपर लोग उस 15 दिन हमारे स्टॉल्स में आए, more than 1 lakh, and करोड़ों रुपया का कारोबार हुआ. I mean, and all the stalls had sold off everything, and in fact 10-12 दिन के बाद उनके पास सेल करने के लिए कोई सामान भी नहीं बचा. And everybody and everyone who had come were absolutely amazed by that, by whatever we had done there, whether it is craft, whether it is culture or it is cuisine. So language, art and culture department 15 दिन में complete हमारे dancers और folk dancers और हम सब कुछ वहाँ exhibit किया last time. This time also we'll be exhibiting our Nati and all our dances and music all the 15 days, especially major programs in the weekends. And cuisine में Himachali Dam and Himachali cuisine. Last time the HP Tourism Corporations they had done it, and it was a major success. Himachali Dam, all the officers and employees or all the visitors fell in love with the Himachali food. So this time we are trying to do better. HPTDC stalls, and there will be various cultural icons of various districts which will be exhibited all over the Delhi Haat and the INA market. And on top of that, there will be about 60 stalls. The stalls will be from the Handloom and Handicraft Department, as well as the Rural Development Department and Agriculture and Horticulture. Last time the sales were amazing. Everybody was extremely happy. MD Gandharv Rathore would explain how she selected the best of the stalls. ऐसे नहीं है या सिर्फ वो शॉल्स में मिलता है या वही. We have made sure that every single, whether it is wood craft, whether needle craft, whether it is metal craft, every single type of Himachali, best of the crafts and arts will be exhibited there. And as we showed you, that we will be having proper workshop there. उपमंडल पदर के चौहार घाटी राजकीय उच्च पाठशाला बलह की अलीशा शांडिल ने चौथी बार स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय स्तर के लिए अपना चयन करवा दिया है। वहीं यशवी शांडिल दूसरी बार स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित हुई है। ये दोनों बेटियां अति दुर्गम क्षेत्र चौहार घाटी के ग्राम पंचायत टीकर के गांव
बाघन से संबंध रखती है, जहां जूडो खेल के लिए कोई भी आधारभूत सुविधा नहीं है। अगर चौहार घाटी के बच्चों को किसी भी खेल के लिए अच्छे संसाधन और कोच उपलब्ध हो तो यहाँ के बच्चे राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक हासिल करने के लिए सक्षम है। इन दोनों बेटियों के कोच जोगिंदर सिंह शांडिल ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों बेटियां राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने के लिए 16 जनवरी को महाराष्ट्र पुणे के लिए रवाना होगी, जहां ये अपनी प्रतिभा का जोहर दिखाएगी। इसके लिए इन बेटियों के अभिभावक, गांव वासियों, राजकीय उच्च पाठशाला बलह तथा पूरी चौहार घाटी में खुशी का माहौल है। नए साल का जश्न 3 युवकों के परिवार के लिए मातम में बदल गया, जब एक दुर्घटना सड़क हादसे में उनकी जान चली गई। यह हादसा नए साल की पूर्व संध्या पर मंगलवार रात करीब 11:30 बजे नेशनल हाईवे 5 पर मतियाना के पास पेट्रोल पंप के समीप हुई है। किन्नौर के 3 युवक एक कार HP 02A 0169 में सवार होकर शिमला से रामपुर की ओर जा रहे थे। तभी उनकी कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई है। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोग आवाज सुनकर घटना स्थल पर पहुंचे और पुलिस व प्रशासन को सूचित किया गया, लेकिन तब तक तीनों युवक दम तोड़ चुके थे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की मार्च 2025 में होने वाली 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 4 मार्च से शुरू होगी। शिक्षा बोर्ड ने मैट्रिक और जमा 2 की नियमित एवं राज्य मुक्त विद्यालयों की वार्षिक परीक्षा, कंपार्टमेंट अतिरिक्त विषय श्रेणी सुधार परीक्षा के प्रस्तावित शेड्यूल जारी किया है। बोर्ड की ओर से जारी शेड्यूल के तहत 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 4 मार्च से शुरू होगी और 19 मार्च को 10वीं कक्षा का अंतिम पेपर होगा। वहीं जमा 2 कक्षा की परीक्षाएं 4 मार्च से 29 मार्च तक आयोजित की जाएगी। बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बोर्ड ने वार्षिक परीक्षाएं का प्रस्तावित शेड्यूल जारी किया है। उन्होंने छात्रों, अभिभावकों, अध्यापकों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक वर्ग से इस प्रस्तावित शेड्यूल के संदर्भ में सुझाव मांगे हैं। उन्होंने कहा कि 10 दिन के भीतर प्राप्त होने वाले लोगों के सुझावों पर विचार किया जाएगा और अंतिम शेड्यूल को जारी किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा के पात्र अभ्यर्थियों के परीक्षा फॉर्म जमा करवाने का स्कूलों को अंतिम मौका दिया है। शिक्षा बोर्ड ने लेट फीस के साथ आवेदन फॉर्म जमा कराने की तिथि को 31 दिसंबर तक बढ़ाया है।
शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि बोर्ड की मार्च 2025 में होने वाली 10वीं और जमा 2 की वार्षिक परीक्षा कंपार्टमेंट अतिरिक्त विषय डिप्लोमा धारक सहित और प्रदर्शन सुधार के लिए आवेदन की अंतिम तारीख को लेट फीस के साथ बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि आवेदन केवल संबंधित स्कूलों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ही जमा करवा सकेंगे। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर तक 100 रुपए और 1000 रुपए लेट फीस के साथ आवेदन किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं होगा। शिमला में ट्रैफिक जाम की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सड़क हादसों की सबसे बड़ी वजह ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या बताई जा रही है। शिमला में गाड़ियों की गिनती बढ़ती जा रही है। इन दिनों शिमला में पर्यटक भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी शिमला का रुख कर रही है और सबसे बड़ी समस्या पर्यटकों को पार्किंग की आ रही है। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मशोबरा में हिपा के 91वें स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। नए साल के साथ ही उन्होंने शुभकामनाएं प्रदेश भर को दी है। वहीं उन्होंने दृष्टिहीन और लावारिस बच्चों के लिए अच्छे भविष्य के लिए कई घोषणाएं की। मैं इस 50वें हिपा की स्थापना पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज से स्पेशल एजुकेटर्स के रूप के लिए शुरू होने वाली ट्रेनिंग के लिए भी आपको बधाई देता हूं। स्पेशल एजुकेशन में यह न्यू एज टेक्नोलॉजी विशेष बच्चों की शिक्षा में मील का पत्थर बनेगी। यह तकनीक पुराने ब्रेल पत्ती का स्थान लेकर विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को शिक्षित करने की दिशा में नए आयाम स्थापित करेगी। स्पेशल एजुकेटर यहाँ से अपनी ट्रेनिंग पूरी करके जाएंगे तो निश्चित रूप से विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को फायदा होगा। पिछले 50 वर्षों में अधिकारी एवं कर्मचारियों को ट्रेनिंग प्रदान करने में हिपा ने अपना एक अलग स्थान बनाया है, जिसके लिए मैं हिपा के सभी स्टाफ को बधाई देता हूँ। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है। गुड गवर्नेंस तभी संभव है जब अधिकारियों को अच्छी ट्रेनिंग मिले और इसमें हिपा की विशेष भूमिका है। आज टेक्नोलॉजी बेस्ड टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नव वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले 2 वर्ष से हमारी सरकार कठिन परिश्रम के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था पटरी से नीचे उतर चुकी थी उसको सही दिशा में लाने में हमारी सरकार आगे बढ़ी है। ऐसे फैसले कर रहे हैं जिससे हमारे राज्य की आय भी बढ़े और हमारे युवा पीढ़ी जो भविष्य में इस प्रदेश की संभालने गई उनके पास आय के साधन हो। आज जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे बैठे हैं, दृष्टिहीन बाधित बच्चे बैठे हैं, उनका भी अधिकार होना चाहिए। जो बच्चा अपनी माता पिता को खो चुका उसका भी अधिकार होना चाहिए। इसलिए नीतिगत परिवर्तन लाकर भी उनको उनका अधिकार दिया जा सकता है। वो केवल मांग के द्वारा नहीं किया जा सकता कि हम मांग करेंगे तब हमें सरकार देगी। ये सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि ऐसे वर्ग जिसकी कोई मांग कभी कोई नहीं उठाई पाई, उनकी दिक्कतों को कौन 4,000 रुपया। दिवंगत प्रधानमंत्री जी हम सबको छोड़कर चले गए और उस समय वो वित्त मंत्री बने जब देश घोर आर्थिक संकट में देश का सोना विदेशों में गिरवी रखा जा रहा था। वो अर्थशास्त्री थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, RBI के गवर्नर थे और उसके बाद उनको वित्त मंत्री के रूप में बनाया। चंद्रशेखर एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिक रखा गया है, उनके नाम से जाना जाएगा ये इंस्टीट्यूशंस। और आज इसकी 50वीं स्थापना दिवस भी है, 51वां स्थापना दिवस है।
गौरवशाली हिमाचल बन सके, इस दृष्टि से मैंने उन्हें बताया ये, क्योंकि यहाँ प्रशिक्षित अध्यापकगण भी होते हैं, इसलिए मैंने ये बातें बताई हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ। कर्जा चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है, तो क्या देखिए इससे ये बाहर निकलने मैं हमारी सरकार को तो 2 साल रहेगा, अब वो कर्जा चुकाने के लिए कर्जा ही लेना पड़ रहा है। 28,000 करोड़ रुपए का कर्जा पिछले 2 वर्षों में हमने लिया। 10,000 करोड़ रुपया हमने ब्याज का चुकता किया और 8,000 करोड़ रुपया प्रिंसिपल अमाउंट का चुकता किया। और जब सरकार के पास जीएसटी का कंपनसेशन सेस आता था, जून 2022 तक आता रहा 3,500 करोड़ रुपया, तब भी पिछली सरकार ने किसी प्रकार से फिस्कल प्रूडेंस और फिस्कल डिसिप्लिन से उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की। आरडीजी आती थी जो 11,000 करोड़ थी, जो घटकर 8,000, 6,000 और इस वित्तीय वर्ष में 3,000 करोड़ रह जाएगी। उसकी तरफ भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए। इसका मतलब ये नहीं कि जो दूसरी सरकारें हैं वो फिस्कल प्रूडेंस और फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ ना जाए। उसे काम करना है ताकि हिमाचल प्रदेश अपने पांव पर खड़ा हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। हमारी सरकार, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य, सहयोगी सदस्य, हमारे अधिकारी दिन रात प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने में लगे हैं।